Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padarth Vigyan. So students, previous video रे आमे OAVS रो happily exam रे जो class 12 रो physics question आस्तिला तार question number 1 रो up to 16 solve करथिले. तो आज रो वीडियो रे आमे question number 29 और 30 solve करिबा जोटा होची case study based question. So let's begin. So question number 29 is from the chapter magnetic effect of electric current. And question number 30 is from the chapter ray optics. तो हमें फर्स्ट देखिबा question number 29 कौन देछि two long parallel conductors A and B separated by a distance D and carrying parallel currents IA and IB respectively. The conductor A produces the same magnetic field BA at all points along the conductor B. The right hand rule tells us that the direction of this field is downwards when the conductors are placed horizontally. Its magnitude is given by BA equal to mu naught IA divided by 2 pi d. तो एटा होची गोटे फॉर्मूला the magnetic field due to a straight conductor mu naught I by 2 pi r हुए एठी हम डिस्टेंस को जेतु d नेचे तो आंसर होची mu naught I divided by 2 pi d. The conductor B carrying a current IB will experience a sideways force due to the field BA. So देखो ये जो paragraph देइछि, this paragraph is basically telling us that what is the force per unit length between two parallel straight current carrying conductors. तो आमे already गोटे derivation शिखिचे जदि हम पाखरे दुईटा वायर अछि infinitely long wires and they are parallel to each other. I1, I2 are the currents flowing through them and D is the separation between the two wires. Then the force acting per unit length on each conductor is given by the formula mu naught I1, I2 divided by 2 pi D. एटा होची force per unit length and सेही जिंस को से paragraph रे मेंशन करिछि. तो एथरे कोन लिखा हिछि ना एटा होची कंडक्टर A एटा होची B. तो आमे जो I1 लिखिचे सेटा क्वेश्चन रे IA कहि देछि एंड I2 को IB लिखिचे. ठीक अछि एंड फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ सेटा लिखा होची mu naught I1 I2 by 2 pi d किंबा जदी मु कहिबी जे L लेंथ ऊपर केते अमाउंट रो फोर्स आसीबो तो F को हम लिखि परिबा mu naught I1 I2 into L divided by 2 pi d. ता माने आमे जे कोनोसी गोटे कंडक्टर नबा I1 I2 बा A और B जो दुटा वायर अछि ता भीतर में जे कोनोसी गोटे वायर नबा तार L लेंथ ऊपर केते फोर्स पड़िबो. दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन लेंथ L of any of either wire. So the paragraph is about this formula. ठीक अछि तो आमे पैराग्राफ को बेसी पढिबानी आमे क्वेश्चन सॉल्व करे को जिबा. तो बेले बेले कोन होय जेते आमे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करू पैराग्राफ रो फर्स्ट किछ लाइन पढला परे हम माइंड रे आसी जाए जे ए पैराग्राफ टा को कांसेप्ट ऊपर बेस्ड एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट कांसेप्ट तापर में पैराग्राफ न पढिले भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का देछि ना ए स्क्वायर लूप. ए क्वेश्चन देखो फर्स्ट बिट ए स्क्वायर लूप कैरिंग ए स्टेडी करंट I is placed in a horizontal plane near a long straight conductor carrying a steady current I1 at a distance D from the conductor as shown in the figure. तो फिगर दे दीची फिगर कौन देला ना एटा होची गोटे स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ वेरी इट इज वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हमें कहि पर एटा होची इनफाइनाइट लेंथ रो एथिरे I1 अमाउंट रो करंट फ्लो होची टुवर्ड्स राइट एंड ता तळे गोटे स्क्वायर लूप अछि. दिस इज द स्क्वायर लूप एंड एज स्क्वायर लूप अछि ए स्क्वायर लूप रे भी करंट फ्लो होची इन दिस डायरेक्शन. एटा होची हमर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे स्क्वायर लूप रे करंट फ्लो होची. ठीक अछि I इज द करंट एंड सपोज आपको नेमिंग कर देबे एटा होची सपोज A B C D. तो जो साइड A B अछि साइड A B रो डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज D. ओके तो से कोन क्वेश्चन पचाला द लूप विल एक्सपीरियंस डैश. लूप कोन एक्सपीरियंस करिवो a net repulsive force away from the conductor na a net torque acting upward perpendicular to the horizontal plane, a net torque acting downward normal to the horizontal plane,
or a net attractive force towards the conductor. So students आमे already जानिचे जे जदि दुईटा parallel wires अच्छी and if the currents are flowing in the same direction, जदि दुईटा को wire रे same direction रे current flow होची, then they will attract each other. आकमे कहि परिबा attractive force. तामे आमे या कहि परिबा जे parallel currents attract each other. किंतु जदि दुईटा का कंडक्टर रे ऑपोजिट डायरेक्शन रे करंट फ्लो होची तमे आको में कहबा एंटी पैरेलल करंट्स तो एठे में पाइबा रिपल्सिव फोर्स आको में कहबा रिपल्सिव फोर्स ओके सो नाउ वी विल लुक एट द डायग्राम तबे देखो वर्तमान I1 जो करंट फ्लो होची द करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स राइट नाउ लुक एट द साइड AB ऑफ द स्क्वायर तो AB रे जो करंट फ्लो होची सेटा भी फ्लो होची टुवर्ड्स राइट ताम आम यह कहीपर जे ए बी उपरे जो फोर्स पड़ो दैट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स कहीं ना ए बी रे जो करंट फ्लो होची इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज I1 ताने I1 कौन करिवो माने जो स्ट्रेट कंडक्टर अच्छी स्ट्रेट कंडक्टर विल अट्रैक्ट द साइड ए बी एंड सी डी उपरे कौन हम ना सी डी रे जो करंट फ्लो होची सेटा फ्लो होची टुवर्ड्स लेफ्ट ताने ऑपोजिट फ्लो होची ऑपोजिट टू I1 तो ये कौन हम आम या कहीपर एफ सी डी एटा हूँ गोटे रिपल्सिव फोर्स एफ सी डी हो रिपल्सिव फोर्स ताने ए बी उपरे जो फोर्स पड़ो दैट फोर्स विल बी टुवर्ड्स द कंडक्टर बट सी डी उपरे जो फोर्स पड़ो दैट फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द कंडक्टर आम क्लियर ना लुक एट द टू फोर्सेस एफ ए बी आउ एफ सी डी देखा द टू फोर्सेस हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन दैट्स वाई से दुईटा फोर्स कौन से प्रकार टॉर्क आसब ना ठीक अच्छे सो रिमेंबर दैट इफ यू हैव टू अपोजिट फोर्सेस बट इफ दे हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन देन देयर विल बी नो टॉर्क ताने टॉर्क जो दुईटा ऑप्शन अच्छी बी आउ सी सेटा आम कैंसिल करदे तो ऑप्शन बी हेनी कि ऑप्शन सी हेनी आम देखा जे आइदर नेट अट्रैक्टिव फोर्स हम कि नेट रिपल्सिव फोर्स हम तो आमको देखार अच्छी जे एफ ए बी आउ एफ सी डी भितर व्हिच वन इज ग्रेटर जेहेतु ए बीटा क्लोज अच्छी ए बी इज क्लोज टू द कंडक्टर I1 एंड सी डी इज स्लाइटली फार अवे फ्रॉम इट तमें ए बी ऊपर जो फोर्स पड़ो दैट फोर्स विल बी ग्रेटर कहीं आम जो फोर्स लिखुचे तार फॉर्मूला कौन ना म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d into L तो जो डी लिखाई डी माने कौन डिस्टेंस आम देखा जे ए बी रो डिस्टेंस केते डी माने द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर इज डी किंतु व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सी डी जदि मैं एज्यूम करिबा जे द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए ताहले कंडक्टर ठारू सी डी रो डिस्टेंस हे जिवो ए प्लस डी हे जिवो ता माने द साइड सी डी इज एट ए लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग कंडक्टर ता माने सी डी ऊपर जो फोर्स पड़ो दैट इज रिपल्सिव फोर्स तार वैल्यू कम होइबो ता माने एफ ए बी इज ग्रेटर दैन एफ सी डी बा मैं कहि परिबा जे अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर दैन रिपल्सिव फोर्स एंड दैट्स व्हाई द नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव फोर्स जदि रिपल्सिव फोर्स वैल्यू अधिक था आम कही नेट रिपल्सिव फोर्स पड़ो बट ये कौन हो अट्रैक्टिव फोर्स वैल्यू अधिक अच्छी तो आम कह नेट अट्रैक्टिव फोर्स पड़ो ताने ऑप्शन डी आसो आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 cm apart and each carries a current of 10 ampere in the same direction ठीक अच्छे तो ये डिस्टेंस डी कहला के 10 cm तो 10 cm जहाँ आपको मैं मीटर करवा के 10 to the power -1 मीटर हो एंड ईच कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर तमाने I1 I2 बोथ आर इक्वल दुईटा को वायर सेम करंट फ्लो हो 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन तमाने अट्रैक्टिव फोर्स पड़ो द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर ये ब्रैकेट कौन लिखाई पर मीटर लेंथ माने बाहर करुचे फोर्स पर यूनिट लेंथ बाहर करुचे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ रो फॉर्मूला कौन म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d ठीक अछि तो आमे देखिबा जे आर वैल्यू केते हबो देखो म्यू नॉट बाय 2 पाई जो अछि आर वैल्यू हे जिवो 2 into 10 to the power -7 ओके तबरे I1 into I2 अछि I1 हला 10 I2 भी 10 तो 10 into 10 एटा हे 10 रो स्क्वायर हे जिवो डिवाइडेड बाय d d केते d होछि 10 to the power -1 तो एटा केते हे जिवो 2 into 10 to the power माइनस देखो -7
ये गोटे 2 थिला एंड ये जो 10 टू द माइनस 1 तले अच्छी ये ऊपर को पड़ेबो एटा 10 टू द पावर प्लस 1 हे जिवो ता माने 2 प्लस 1 3 हला ये अच्छी माइनस 7 अच्छी ता माने 10 टू द पावर माइनस 4 हे जिवो फोर्स रो वैल्यू 2 into 10 to the power minus 4 न्यूटन एंड the force tar nature कौन हबो एटा हबो attractive force because एटा कहिछि सेम डायरेक्शन कहिछि तो एटा हे जिवो attractive force हे जिवो ओके तो आंसर कोटा आंसर हबो 2 into 10 to the power minus 4 न्यूटन and it is attractive force okay next question jiba two long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now the current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of force between them is dash. तो ठीक से क्वेश्चन कौन दीची नाम पाखरे दुईटा कंडक्टर अच्छी लाइक दिस एंड इनिशियली से I1 और I2 अमाउंट करंट फ्लो होता इन द सेम डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम केते इट वाज d एंड दे एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर ठीक है तो यही केस रे फोर्स थिला F ओके तो ये फोर्स रो वैल्यू कौन म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी सपोज आम एज्यूम करछे आम बाहर करछे फोर्स पर यूनिट लेंथ बाहर करछे तो म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी हो ओके तो से कौन कहला नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स तमें सपोज ये जो दुईटा वायर अच्छी आम कौन करवा गोटे वायर रे जो करंट फ्लो होची ताको मैं डबल कर देबा 2 टाइम्स कर देबा सपोज आम एबे जो आउ गोटे डायग्राम ड्रा करबा एबे आम कौन कहबा फर्स्ट वायर सपोज आम 2I1 रो करंट फ्लो करबा माने डबल करंट कर देबा किंतु सेकेंड रे I2 करंट रहइबो ठीक अछि तो से कौन कहला एठी नाउ द करंट इन वन ऑफ देम इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स एंड दिस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड सो द मैग्नीट्यूड बिकम्स डबल एंड द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड त माने देखो फर्स्ट डायग्राम रे कोन होतला आमे जो I1 करंट फ्लो करूतले फर्स्ट कंडक्टर रे दैट करंट वाज अपवर्ड तो एबे में कोन करिया कहमे डाउनवर्ड कर देबा द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड बट सेकेंड वायर में किसी चेंज करबानी से तरह करंट से I2 फ्लो हबो एंड डायरेक्शन भी सेम रहइबो आउ कोना में चेंज करबा द डिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीज्ड टू 3d माने द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स नाउ बिकम्स 3d ठीक अछि से पचला व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन देम एबे न्यू फोर्स वैल्यू केते हबो सो देखो एथरे जो ऑप्शन देइछि एथरे नेगेटिव आंसर अछि पॉजिटिव आंसर भी अछि तो नेगेटिव आंसर देइछि माने इट इज इंक्लूडिंग द डायरेक्शन आल्सो ठीक अछि तबे देखो जते बेले दुईटा को वायर रे सेम डायरेक्शन रे करंट फ्लो होतला द फोर्स वाज अट्रैक्टिव फोर्स ठीक अछि बट नाउ इन द सेकंड केस द फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स ता माने द फोर्स रो डायरेक्शन चेंज हो जाउछि सो डेफिनेटली आंसर नेगेटिव आसीबो ठीक अछि ता माने जो पॉजिटिव ऑप्शन अछि ऑप्शन बी जो f/3 देइछि सेटा हे परिबो नै द आंसर विल बी नेगेटिव बट तार वैल्यू केता हबो एबे देखा एबे हमरे न्यू फोर्स बाहर करियो f डैश बाहर करबा सेटा केता हबो म्यू नॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू करंट्स जो हा जो 2I1 into I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई जो डिस्टेंस छि d एटा एबे हे जिवो 3d हे जिवो ठीक अछि तबे में कौन करबा ए जो 2 अच्छी आ जो 3 अच्छी ताकू हमें बाहर को नै जबा 2/3 कर देबा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई d कर देबा एंड एटा को एटा होची इनिशियल फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर्स जोटा हे जबो 2f/3 तमे कोन पाइले बे f डैश होचे केते 2f/3 एंड सिंस द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड तबे हमें लिखबा माइनस साइन दबा तो आंसर केता हो f डैश इक्वल -2f/3 द नेगेटिव साइन इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जिमा में two long parallel wires are carrying the currents 5 ampere and 12 ampere respectively if the force per unit length between these wires is 3 into 10 to the power -5 newton per meter तमने एटा होची फोर्स पर यूनिट लेंथ the distance between them should be dash again say same formula so सब क्वेश्चन से सेम फार्मूला को बेस करके अछि
फोर्स पर यूनिट लेंथ टा हूँ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी आर भैल्यू केते कहिछि आर भैल्यू कहि देछि 3 इंटू 10 टू द पावर -5 ओके तो म्यू नॉट बाय 2 पर भैल्यू केते हो 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हे जिवो इंटू I1 केते 5 एम्पियर I2 केते 12 एम्पियर डिवाइडेड बाय हमको दरकार d ठीक अछि तो d को हमें लिखिबा एठी इक्वल 3 इंटू 10 टू द पावर -5 तो एटा केते हिजबो 2 इंटू 5 10 हे गेला तो 10 इठी अछि 10 टू द पावर -7 तो एटा हिजबो 10 टू द पावर -6 इंटू 12 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -5 एठी गोटे तळे गोटे d अछि हमको d बाहर करबार अछि तमे d को नै जिवो अदर साइड को तो d रे वैल्यू केते हिजबो 12 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -5 तो एटा हिजबो 4 हला तो 4 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर 4 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर बाकुम लिखि परिबा 0.4 मीटर 0.4 मीटर ठीक अछि तमे ऑप्शन चेक करिबा ऑप्शन रे ऑप्शन सी अछि 0.4 मीटर दैट इज द करेक्ट आंसर तो आईवी बीट रो तार और आउट क्वेश्चन देछि two long straight wires are set parallel to each other each carries a current in the same direction and separation between them is 2r the intensity of magnetic field midway between them is dash तो दुईटा long straight current carrying conductor अछंती ठीक अछि and the distance between them is 2r तो एटा को हम लिखिबा 2r लिखि देबा and both of them are carrying the same current I it would miss ହେଇଯାଇଛି it have each carries a current I it would I miss ହେଇଯାଇଛି in the same direction and separation between them is 2r ठीक अछि तो से पतला जे what is the magnetic field in at the midway between them midway माने कोन जेहेतु distance between the two wires is 2r आमे जदि मिडिल रे गोटे पॉइंट चूज करबा त माने एई पॉइंट रो डिस्टेंस लेफ्ट वायर रो r आसीबो राइट वायर रो भी r आसीबो तो से पचारची जे एई पॉइंट रे मैग्नेटिक फील्ड केते हो सो आमे जानि छे जे गोटे स्ट्रेट कंडक्टर पई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आमे केन बाहर करबा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल तो जदि आमे राइट हैंड थंब रूल यूज करबा देन आमे देखिबा एठी जे लेफ्ट वायर पई आपको पॉइंट p कहि दोची लेफ्ट वायर पाई पॉइंट p रे जो मैग्नेटिक फील्ड आसीबो दैट विल बी इनवर्ड ठीक अछि यू कैन यूज द राइट हैंड थंब रूल एंड जानि परिबो जे पॉइंट p रे फर्स्ट जो लेफ्ट जो वायर अछि ता पाई जो फील्ड आसीबो दैट विल बी इनवर्ड एंड राइट रे जो वायर अछि ठीक अछि ता पाई पॉइंट p रे जो फील्ड आसीबो दैट विल बी आउटवर्ड ठीक अछि so if you know about the right hand thumb rule ताको यूज करा and very easily तुम जानि परिबो जे point p रे magnetic field due to the left wire will be inward due to the right wire will be outward and both wire रे same current flow होची and point p रो distance from both the wires is same that is r ता माने point p रे first left रो wire टा जति की field produce करिवो राइट वायर भी सेति फील्ड प्रोड्यूस करिवो त माने b1 और b2 रा वैल्यू सेम हे जिवो द वैल्यूज ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू वायर्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन गोटे होची इनवर्ड गोटे होची आउटवर्ड सो दे विल कैंसिल ईच अदर एंड हेंस द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 सो ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 29 नंबर तो नेक्स्ट हमें जीवा नंबर 30 को जोड़ा होची based on ray optics ठीक अछि अगेन क्वेश्चन देखला पर जाना पड़ी जाउची जे एटा होची लेंस ऊपर कोटे क्वेश्चन देइची माने पैराग्राफ देइची एंड ए पैराग्राफ रे कोन सब लिखा हिची जे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ एंड हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट पावर बाकी एथे कोटे से भूल कोन हे जाइची ना एठी 1/f रहिबा कथा तो एठी खाली f हे छै दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक तो छाड़ दियो तो ओवरऑल हमें देखि के जानि पड़ुचे जे ए जो पैराग्राफ देछि इट इज बेस्ड ऑन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस तो ठीक अछि हमें एबे क्वेश्चन सॉल्व करबा एबे क्वेश्चन कोन देछि two thin lenses are kept coaxially in contact with each other
एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 80 सेंटीमीटर तामाने आमे दुईटा लेंस रखीचे और से दुईटा लेंस रो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होचे केते 80 सेंटीमीटर ठीक अछि इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द अदर तो फॉर्मूला कौन 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 तो ये f1 गोटे लेंस रो फोकल लेंथ केते कहि दिछि 20 cm कहि दिछि तो एबे हमें एही फॉर्मूला यूज करके वेरी इजीली हमें कैलकुलेट करि परिबा तो 1/80 equal to 1/20 plus 1/f2 that implies 1/f2 केते हबो 1/80 minus 1/20 तो 80 जीवो LCM एठी 1 रहला -4 तो रहे जीवो -3/80 हमको f2 दरकार f2 केते हे जीवो -80/3 सेंटीमीटर एटा हे जीवो हमें देखो डेसिमल रे करबा एटा हे जीवो -26.66 सेंटीमीटर बा में -26.7 कहि परिबा त माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डबल आई कोन देछि ना ए स्फेरिकल एयर बबल इज एम्बेडेड इन ए पीस ऑफ ग्लास फॉर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द बबल इट बिहेव्स लाइक डैश देखो एयर बबल रो शेप केमति आसीबो द शेप विल बी लाइक दिस इज एयर बबल ठीक अछि ता माने कोन एटा होछि वन टाइप ऑफ कन्वेक्स लेंस रो गोटे शेप एटा ठीक अछि तो ए जो क्वेश्चन को एटा हो जो गोटे कांसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ए भलिया क्वेश्चन सॉल्व करिया पई मु गोटे पॉइंट कहबो चाहूची मन रखिथा आमे जानि छे जे कन्वेक्स लेंस को आमे कहंती कन्वर्जिंग लेंस कहंती कन्वेक्स लेंस होची कन्वर्जिंग लेंस तमने बाय डिफॉल्ट जते बेले एयर रे में रखुचे तो कन्वेक्स लेंस कोन करे लाइट को कन्वर्ज करे दैट्स व्हाई कन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस and concave lens is known as diverging lens ठीक है आपको मैं कहबा diverging lens कहबा because if you pass parallel beam of light through it ताले कोन हबो ना सीधा को डाइवर्ज कर देबो बट एठी गोटे पॉइंट हला कोन ना convex lens भी लाइट को डाइवर्ज करि परिबो और concave lens भी लाइट को कन्वर्ज करि परिबो त माने द नेचर कैन बी रिवर्स्ड केते हबो मन रखता जते बेले लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदी तार सराउंडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रु अधिक रहिला ठीक अछि कोन कहली लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदी सराउंडिंग रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रु अधिक रहिला देन ता नेचर चेंज होबनी तमने दिसे कन्वेक्स शेप थिबो इट विल बिहेव एज कन्वर्जिंग लेंस दिसे कनकेव थिबो इट विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस किंतु एटा नो चेंज इन नेचर किंतु जदि लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता कमी गला सराउंडिंग रो ताले कोन हबो नेचर रिवर्सेस नेचर कोन हिबो रिवर्स हे जिवो ओके ता माने कन्वेक्स लेंस बिहेव करिवो एज डाइवर्जिंग लेंस आ कनकेव लेंस बिहेव करिवो एज कन्वर्जिंग लेंस तो एबे जो क्वेश्चन जी कोन गोटे ग्लास भितरे गोटे ग्लास ला भितरे गोटे एयर बबल अछि लाइक दिस ठीक अछि तो तार सराउंडिंग रे कोन अछि ग्लास अछि सराउंडिंग होछि ग्लास एंड दैट बबल इज एयर इज मेड फ्रॉम एयर तो एयर इज रेयरर देन ग्लास ता माने एयर बबल रो सराउंडिंग रे जो मीडियम अछि ग्लास अछि इट इज डेंसर ता माने जदि मैं एयर बबल गोटे लेंस आकार कंसीडर करिबा लेंस रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने एयर रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ता विल बी लेस देन दैट ऑफ सराउंडिंग बिकॉज़ सराउंडिंग रे ग्लास अछि ता माने कोन हबो दैट लेंस लुक्स लाइक ए कन्वेक्स लेंस किंतु इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस तार नेचर चेंज हो कहीं कि बिकॉज़ चारिपटे ग्लास अछि व्हिच इज डेंसर देन एयर ठीक अछि तो ए जो क्वेश्चन आंसर कोन हबो द आंसर विल बी डाइवर्जिंग लेंस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द लेंस जनरली यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास इज डैश एटा हबे सिंगल कन्वेक्स लेंस हमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करछे ज्योमेट्री बॉक्स थाए दैट इज सिंपल ए कन्वेक्स लेंस ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एठी द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज by a convex lens is positive only when the object is placed where तो मन रखता मैग्निफिकेशन पॉजिटिव केते आसीबो जदी आमे वर्चुअल इमेज पाउचे ठीक अछि इन केस ऑफ रियल इमेज द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव
but if you are getting virtual image then the magnification will be positive. ठीक अच्छे तो ये पचारे जे कन्वेक्स लेंस केते बड़े मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दब जिते बड़े कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करिवो तो कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज केते प्रोड्यूस करे ओनली अंडर वन कंडीशन जिते बड़े ऑब्जेक्ट रहिबो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बिटवीन O and F ऑप्टिकल फोकस सॉरी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस ता माने ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. तार और आउट क्वेश्चन देछि a convex lens of 20 centimeter focal length forms a real image which is 3 times magnified. Then the distance of the object from the lens is dash. तो देखो ये कहले कौन ना गोटे कन्वेक्स लेंस अच्छी से कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ केते कहला 20 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ तो f केते हो f होबा प्लस 20 सेंटीमीटर and it produces by it forms a real image which is 3 times magnified. तो ये m रे वैल्यू केते हो m रे वैल्यू हे जब 3 but we have to mention negative sign कहीं कि कोई ची रियल इमेज माने नेगेटिव मैग्निफिकेशन तो m होची -3. ओके तो से पचाला जे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस तो हमें u बाहर करबा. ठीक अछि तो आम समझ जाने जे मैग्निफिकेशन गोटे फॉर्मूला अच्छी जदि आम लेंस विषय कहूँ तो v/u हूँ फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन किंतु आ छड़ा आहरी भी दुईटा फॉर्मूला अच्छी माने इन टर्म्स ऑफ f एंड u आ गोटे अच्छी इन टर्म्स ऑफ f एंड v तो ताको मैं डिराइव करबा कि देखो जदि आम जाने लेंस फॉर्मूला कौन 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. ठीक अच्छे तो ये कौन करवा सबू जाक टर्म रे आम u मल्टीप्लाई करदे तुम कौन पाइबा u/v माइनस u/u इक्वल टू u/f तो u/v माइनस 1 इक्वल टू u/f बा u/v केते हे जिवो u/f प्लस 1 एटा हे जिवो u प्लस f/f आमको दरकार v/u बिकॉज v/u होची मैग्निफिकेशन तो v/u हमें केते पहले f/f प्लस u एंड v/u जहा मैग्निफिकेशन से. ठीक अच्छे सो रिमेम्बर दिस फॉर्मूला तो ये m केते कोइ -3 कहिला तो m केते बा f/f प्लस u f केते f को 20 तो 20/20 प्लस u कर देबा देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देबा एठी -3 20 केते -60 देन -3u इक्वल टू 20 देन -60 -20 इक्वल टू +3u -60 -20 इक्वल टू +3u तो -80 इक्वल टू 3u बा u केते हो u हे जबो -80/3 सेंटीमीटर एंड इटा हबो -26.66 बाय -26.7 सेंटीमीटर तो हम यदि चेक करिबा ऑप्शन सी राइट आंसर. ठीक है 26.66 सेंटीमीटर बाकी हमें जो नेगेटिव साइन पाइले इटा होची साइन कन्वेंशन पाई बट हमें देखो पचारिबा जो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इट विल बी 26.66 by 26.7. okay so students I have solved all the questions that was asked in the half yearly exam and I hope that all of you have understood all the solutions. तो जदि किसी डाउट अच्छी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड ए भाई जदि भी केते केस के क्वेश्चन आसला सो डोंट ट्राई टू रीड ऑल द पैराग्राफ कहीं पैराग्राफ एमती पढ़िया को जीवा तो टाइम बहुत लॉस हम बेटर आम कौन करवा आम जस्ट ओवरलुक कर पैराग्राफ को आम देखिए जे पैराग्राफटा को कॉन्सेप्ट को बेस कर एंड वंस यू क्रैक दैट कॉन्सेप्ट तापर जहाँ सब क्वेश्चन थी the questions are based on that concept. ठीक अच्छे एथिरे केबे भी तमे एक्सपेक्ट करबोनी जे आंसर इज गिवन इन द पैराग्राफ एटा सदा होएनी पैराग्राफ रे केबे कांसेप्ट देथाय एंड से कांसेप्ट को बेस करके हमें क्वेश्चन मे बी बेले बेले कहिना पैराग्राफ रे फॉर्मूला देथि पर जेते एठी फॉर्मूला देछि हाउ टू कैलकुलेट फोकल लेंथ एठी फॉर्मूला देछि हाउ टू कैलकुलेट फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल कंडक्टर्स तो फॉर्मूला में भी देथि पारे बट again the questions will be based on that concept. तो ठीक अच्छे आम पुनः देखा नेक्स्ट वीडियो with some new questions. So till then have a nice day and bye bye.